आचार्य भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं समय सार को कहूँगा? क्योंकि समय सार का अर्थ है समय में सारभूत। समय का अर्थ है जीव में, समय यानी जीव, जीव में सारभूत, जीव में सारभूत विनायक स्वभाव को, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को, परम पारणामिक भाव को, ध्रुव स्वभाव को, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को, उसके स्वरूप को मैं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का आश्रय लिए बिना जीव के परिणाम में संवर, निद्रा और मोक्ष की प्रकटता होती नहीं है। तो ये समय सार की 13वीं गाथा चलती है। तेरहवीं गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि शुद्ध नहीं से जानना वो सम्यक्त्व है। शुद्ध नहीं, जो नहीं आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को दिखाती है, तो जो जीव शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव को जानता है, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक वो कहाँ है? तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक जीवादि 9 तत्व में छुपा हुआ है। जो शुद्धादि जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव 9 तत्वों में छुपा है, वो 9 तत्वों को गौण कर दे, आत्म स्वभाव को मुख्य कर दे, आत्म स्वभाव को मुख्य कर दे, तो आत्म स्वभाव को मुख्य करना वो शुद्धि का विषय है। ये बात 13वीं गाथा की चलती है। हम आए थे 13वीं गाथा की टीका। टीका में टीका के लास्ट पैराग्राफ की 3.5 लाइन बाकी है। देखो लास्ट पैराग्राफ,
તેથી આ નવે તત્વોમાં નવ તત્વો જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશ્રવ સંવર નિજરા બંધ અને મોક્ષ નવ તત્વોમાં ભૂતાર્થ નહીંથી એટલે શુદ્ધ નહીંથી, સત્યાર્થ નહીંથી, દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી, એક જીવ યાની જ્ઞાયક સ્વભાવ જ પ્રકાશમાન છે એટલે કે વિદ્યમાન છે. શું કીધું? ફરીવાર નવે તત્વોમાં જીવનું એક સમયનું વર્તમાન પરિણામી જીવ તત્વ છે. એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. અજીવને જાણનારું જ્ઞાન એ અજીવ તત્વ છે. એ જ્ઞાનમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું આરાધન કરવાનો ભાવ પુણ્ય ભાવ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક પાંચ પાપોના ભાવ અસત્ય જૂઠ આદિ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક આત્માના પ્રદેશોના કંપનમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક આશ્રવમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક રાગ દ્વેષ એટલે બંધ તત્વ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક વર્તમાન એક સમયની શુદ્ધ પર્યાય પ્રથમ પ્રગટ થઈ સંવર તત્વ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક શુદ્ધિની વૃદ્ધિ એ શુદ્ધિની વૃદ્ધિરૂપ પરિણામમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક અને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સા એવો મોક્ષ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક તો કે છે કે આ નવે તત્વમાં ભૂતાર્થ નહીંથી જોઈશ, સત્યાર્થ નહીંથી જોઈશ, શુદ્ધ નહીંથી જોવામાં આવશે તો એક જ્ઞાયક પ્રકાશમાન એટલે વિદ્યમાન છે એમ તે એકપણે પ્રકાશતો એ જ્ઞાયક નવપણે થયો નથી. નવ પરિણામ થયા પણ જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક રહ્યો. જ્ઞાયક તો જ્ઞાયકપણે થયો, જ્ઞાયક તો જ્ઞાયકપણે રહ્યો.
તે એકપણે પ્રકાશતો, એકપણે વિદ્યમાન રહેતો, નવપણે ક્યારેય થયો નથી અનાદિથી આજ દિવસ સુધી. એ જે એકપણે જે જ્ઞાયક છે એ શુદ્ધ નહીંપણે અનુભવાય છે. શુદ્ધ નહીં પણે અનુભવાય છે એટલે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયપણે જણાઈ રહ્યો છે. એ જ્ઞાયકપણે અનુભવાય છે એટલે જ્ઞાયકપણે જણાઈ રહ્યો છે. અને જે અનુભૂતિ એટલે જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણે જાણ્યો એને અનુભૂતિ કીધી. એ જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણે જાણ્યો તે આત્મખ્યાતિ, આત્માની પ્રસિદ્ધિ, આત્માની ઓળખાણ, આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ જ છે. એ જે આત્મ સ્વભાવની પ્રસિદ્ધિ થઈ, આત્મ સ્વભાવની જે ઓળખાણ થઈ, તે આત્મખ્યાતિ, તે સમ્યક દર્શન જ છે. તે સમયે દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર છે. જે જ્ઞાન ઉપયોગ જ્ઞાયકને જાણે છે ત્યારે દ્રષ્ટિ જ્યારે જ્ઞાયક ઉપર જાય છે ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ બહારથી પલટાઈને આત્મ સ્વભાવ સન્મુખ થાય છે. તો દ્રષ્ટિએ જ્ઞાયકમાં હું પણ કર્યું, દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકમાં હું પણ કર્યું, તે સમ્યક દર્શન છે. આ રીતે સર્વકથન અનેક ભેદ પ્રભેદના કથન કર્યા, પણ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક કાયમ છે એવું કથન નિર્દોષ છે એટલે બાધા રહી છે. फिर से हिंदी में क्या कहा? आचार्य भगवान ने मांगलिक के बाद तो प्रतिज्ञा ये की है कि मैं समय सार को कहूँगा. समय का अर्थ जीव, जीव में सारभूत, जीव में सारभूत ऐसा शुद्ध नहीं का विषय, जीव में सारभूत ऐसा शुद्ध नहीं का विषय तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, ज्ञायक है. उसको जानने से यानी ज्ञायक का स्वरूप जानने से ज्ञायक एक है, त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, निरपेक्ष है, ऐसा स्वरूप जाना. जैसा जाना वैसा श्रद्धान किया, जैसा जाना वैसा स्वभाव को प्रतीत किया, जैसा आत्म स्वभाव को जाना वैसे आत्म स्वभाव की रुचि की, वो सम्यक दर्शन है. ऐसा विषय 13वीं गाथा का चलता है.
13वीं गाथा की टीका चलती है, उसकी लास्ट 3.5 लाइन है, देखो। इसलिए ये 9 तत्वों में, 9 तत्व यानी वर्तमान एक समय का परिणाम वो जीव तत्व है। अजीव को जानने वाला ज्ञान अजीव तत्व है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना का भाव शुभ भाव। जो एक समय का वर्तमान जीव का परिणाम, उसमें छुपा हुआ ज्ञायक है। अजीव को जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान के परिणाम में भी छुपा हुआ एक ज्ञायक है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव आया। गुरुदेव के प्रति, बेंसी के प्रति अहोभाव आया, वो भी शुभ भाव है। उसमें छुपा हुआ ज्ञायक 5 पाप का परिणाम, हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 भाव में छुपा हुआ ज्ञायक है। आत्मा के प्रदेशों का कंपन, इस आश्रव तत्व, उसमें छुपा हुआ ज्ञायक है। एक समय के लिए प्रथम बार शुद्धता प्रगटती है, वो संवर तत्व में भी छुपा हुआ ज्ञायक है। आत्मा के परिणाम में शुद्धि की वृद्धि हुई, वो निजरा तत्व, उसमें भी भूतार्थ नहीं के विषयभूत ज्ञायक छुपा हुआ है। राग द्वेष बंध तत्व है। वो राग द्वेष जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, उसमें भी छुपा हुआ भूतात्मी का विषय ज्ञायक है। परिपूर्ण शुद्ध दशा, मोक्ष की दशा, अर्यंत पद, सिद्ध पद, उसमें भी छुपा हुआ भूतात्मी के विषय भूत एक ज्ञायक है। वो एक ज्ञायक प्रकाशमान है, वो 9 तत्व में विद्यमान है। प्रकाशमान यानी विद्यमान। नौ तत्वों में से किसी एक परिणाम रूप तो जीव होता है। तो जीव के अनादि से अनंत काल के सब प्रकार के परिणाम में छुपा हुआ ज्ञायक तो विद्यमान 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 है। वो तो विद्यमान है, लेकिन तूने उस पर दृष्टि नहीं की। तूने कभी ज्ञायक को प्रतीत नहीं किया, उसकी रुचि नहीं की। मैं ज्ञायक हूं ऐसा एहसास नहीं किया। वो तो विद्यमान है।
आगे कहा, ऐसा वो यानी विद्यमान वो, विद्यमान ज्ञायक वो एक पन ने प्रकाशित होता हुआ। देखो, परिणाम नवरूप हुआ है, ज्ञायक तो एक रूप रहा, वो तो जैसा है वैसा है, उसके शक्ति रूप सामर्थ्य में वदघट नहीं। शक्ति रूप सामर्थ्य का जो सामर्थ्य है वो तो परिपूर्ण जैसा है वैसा रहता है, वो तो एक पणे रहता है। जो ज्ञायक अभेद है वो तो अभेद रहता है, नव तत्वों में भी अभेद है। वो ज्ञायक अनंत गुणात्मक है, उसका अनंत गुणात्मकपना भी नव तत्व में जैसा है वैसा छुपा हुआ है। अनंत शक्ति का सामर्थ्य वाला ज्ञायक वो नव तत्व में जैसा है वैसा विद्यमान 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 प्रत्यक्ष 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 प्रत्यक्ष। जब तू दर्शन करना चाहते हैं तब तू कर सकता है। अब आगे कहा, शुद्ध नहीं पने अनुभव में आता है। शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक अनुभव में आता है। उसका अर्थ शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक उसका स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान की जानकारी में आता है, ज्ञान उसको जान लेता है। और जो ये क्या कहा, और जो ये अनुभूति है यानी शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक जानने में आया, वो आत्मख्याति ही है। आत्मख्याति यानी आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जानने में आना। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ज्ञान में आना, उसको आत्मा की प्रसिद्धि कहने में आता है, उसको आत्मा की पहचान कहने में आता है। आत्मा का स्वरूप है उसकी पहचान हो जाए, उसको आत्मख्याति की। वर्तमान पर्याय ने उत्पन्न होने के साथ शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को विषय बनाकर जो ज्ञायक अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है ऐसा जाना। एक ज्ञायक त्रिकाल शुद्ध है ऐसा जाना। एक ज्ञायक शक्ति रूप सामर्थ्य से परिपूर्ण भरा हुआ है ऐसा जाना। एक ज्ञायक अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तिवान है ऐसा जाना। ऐसा जो जाना उसको आत्मा के स्वरूप की प्रसिद्धि हुई, जानकारी हुई, उसको आत्मख्याति कहने में आता है।
ऐसा जो आत्मा का स्वरूप जानने में आया वो मैं हूं, ऐसा श्रद्धांजन जो हुआ, ऐसा ज्ञायक स्वरूप मैं हूं, ऐसा हूंपना ज्ञायक स्वरूप आत्मा में हूंपना हुआ, वो सम्यक दर्शन ही है। इस प्रकार ये सर्व कथन निर्दोष है। इस प्रकार क्या कहा कि इस प्रकार सर्व कथन यानी वेदरूप कथन, लेकिन वेद में अवेद तो विद्यमान है। वेद में अवेद विद्यमान है और उसमें अवेद का ज्ञान हो सकता है। तो ये सब कथन निर्दोष से बाधा रहित है। तो ये हुआ गाथा 13। उसका भावार्थ हमने पहले लिया था। अब 13वीं गाथा पर अमृतचंद्राचार्य देव ने 8 नंबर का श्लोक रखा है। जो 8 नंबर का श्लोक है उसका हेडिंग है यहाँ, यानी અહીં એ અર્થનું કલશરૂપ કાવ્ય કહે છે। અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ 8મા શ્લોકની રચના કરી છે। એનો શ્લોકાર્થ નવ તત્વમાં જીવ આદિ 9 તત્વમાં ઘણા કાળથી એટલે અનાદિકાળથી છુપાયેલ એટલે અગોચર આ આત્મજ્યોતિ એટલે કે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ એટલે કે શુદ્ધ નહીના વિષયભૂત આત્મા શું કહ્યું? 9 તત્વ અજ્ઞાની તો અનાદિકાળથી જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશ્રમ બંધ રૂપે પરિણમ્યો છે। ક્યારેય સંવત વિજરા મોક્ષ રૂપે પરિણમ્યો નથી। અજ્ઞાનીએ અનાદિથી વર્તમાન કાળ સુધીમાં અનંત પ્રકારના પુણ્ય પાપ આશ્રમ બંધના પરિણામ કર્યા। સાધકે સંવર નિજરાના પરિણામ પણ કર્યા અને હરિયન સિદ્ધોએ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પરિણામ પણ કર્યા। એટલે કે મોક્ષ દશાની પણ પ્રાપ્તિ કરી। ચાહે અજ્ઞાની હોય, સાધક હોય
કે અરિહંત સિદ્ધ હોય, એને અનાદિકાળથી જે પરિણામ કર્યા એ પરિણામમાં પ્રત્યેક સમયે આત્મજ્યોતિ છુપાયેલી હતી. આત્મજ્યોતિ વિદ્યમાન હતી. આત્મજ્યોતિ હાજરા હજુર હતી. આત્મજ્યોતિ સાક્ષાત હતી. પણ અજ્ઞાનીએ શુભ અશુભ ભાવમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ એના ઉપર ક્યારેય દ્રષ્ટિ મૂકી નથી, એના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન કર્યું નથી. અનાદિકાળની ભૂલ. આત્મજ્યોતિનો સ્વીકાર ન કરવો, જ્ઞાયક સ્વભાવનો સ્વીકાર ન કરવો, શુદ્ધનીના વિષયભૂત સ્વભાવનો સ્વીકાર ન કરવો, એને અનાદિકાળની ભૂલ છે અજ્ઞાનીની, એટલે કે આપણી. આત્મજ્યોતિ કયો, એને જ્ઞાયક કયો, એને અનંત ગુણાત્મક એકરૂપ સત્તા કયો, અનંત શક્તિનો પિંડ કયો, અનંત ધર્માત્મકપણું કયો, ભાવવાન કયો કે ધ્રુવ સ્વભાવ કયો કે પરમ પરિણામિક ભાવ કયો કે એકરૂપ સ્વભાવ કયો કે દ્રષ્ટિનો વિષય કયો કે શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંનો વિષય કયો કે દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય કયો, એ વિષય અનાદિથી પ્રત્યેક જીવ પાસે છે. હાજરા હજુર છે, વિદ્યમાન છે, સાક્ષાત છે. ક્યાં છે? પોતાની પર્યાયમાં. ક્યાં છે? પોતાની પર્યાયમાં છુપાયેલો છે. પોતાની પર્યાયમાં ઢંકાયેલો છે. પોતાની જ પર્યાયે એને તિરોભૂત કરેલો છે. પોતાની જ વિભાવરૂપ પર્યાયે એને આવરણ કર્યું છે. એ છુપાયેલ આત્મજ્યોતિ છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ જણાશે ક્યારે? તો કે છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ વ્યવહારનીના વિષયભૂત પર્યાયને ગૌણ કરે અને શુદ્ધનયના વિષયભૂત આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને મુખ્ય કરે. તો આત્મજ્યોતિ જણાય, શુદ્ધનીનો વિષય જણાય. શુદ્ધનીના વિષયમાં હું પણ સ્થાપિત થાય. આ કાર્ય આપણે અજ્ઞાની અનાદિકાળથી કર્યું નથી. फिर से हिंदी में श्लोक नंबर 8, उसका हेडिंग है कि अब
अब का अर्थ है 13वीं गाथा के बाद। ये अर्थ का 13वीं गाथा में जो बात बताई थी उसका ही कलश रूप काव्य कहते हैं। 13वीं गाथा का हार्द कायम रख के अमृतचंद्राचार्य देव 8 नंबर के श्लोक की रचना करते हैं। वो भी समर्थ आचार्य है। कुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर उसके एक एक भाव को बाहर निकालना, ऐसा जबरदस्त कार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने किया है। श्लोकार्थ इस प्रकार पूर्व की गाथा में बताया, उस प्रकार 9 तत्व में जीव की वर्तमान पर्यायवर्ती है, वो जीव तत्व है। अजीव को जानने वाला ज्ञान वो अजीव तत्व है। शुभाशुभ भाव उसमें शुभ भाव पुण्य तत्व है, अशुभ भाव पाप तत्व है। आत्मा का प्रदेशों का कंपन आश्रव तत्व, राग द्वेष बन तत्व। अज्ञानी को तो इतना ही भाव होता है, साधक को समो निजरा होता है, अर्यन सिद्ध को मोक्ष तत्व होता है। अनादि से आज तक जितने जीव है उसके ये 9 प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। वो 9 तत्व के जो परिणाम है वो परिणाम है क्षणिक, लेकिन उसमें छुपा हुआ जो ज्ञायक है वो त्रिकाल है। परिणाम अशुद्ध हो सकता है, शुद्धाशुद्ध हो सकता है, पूर्ण शुद्ध हो सकता है, लेकिन उसमें छुपा हुआ ज्ञायक तो परिपूर्ण शुद्ध तीनों काल रहता है। अशुद्ध पर्याय में भी परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक छुपा हुआ है। जो ज्ञायक है उसका दूसरा नाम आत्म ज्योति है। ज्ञान 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 ज्ञान, जाणन स्वभाव जाणन स्वभाव जाणन स्वभाव। ये जाणन स्वभाव 9 तत्वों में छुपा हुआ, ये छुपा है कब से? अनादि से। हाँ जी, अच्छा, दूसरे को आ रहा है ऐसा? दूसरे को होता है? अच्छा, જોઈએ હવે
અહીંયા ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ નથી અને વોલ્યુમ પણ ફૂલ છે, પણ વચ્ચે કોઈના ફોન આવે ને તો ડિસ્ટર્બ કરતું હોય છે ક્યારેક. જોઈએ છતાં क्या कहा कि 9 तत्व में यानी 9 तत्व रूप पर्याय में ये आत्म ज्योति छुपी है, विनायक स्वभाव छुपा है. स्थान बताया कि तेरा विनायक कहाँ है, बाहर में नहीं है. विनायक है तो तेरे असंख्यात प्रदेश में. विनायक तो है तेरी ही पर्याय में छुपा हुआ. तेरी पर्याय ने उसको आवरण किया है. तेरी पर्याय ने वो विनायक को तिरोभूत किया है. तेरी ही पर्याय ने तेरे विनायक को ढक दिया, अंतराय किया. तेरी एक समय की पर्याय, विकारी पर्याय, उसकी ताकत, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला आत्मज्योति, परिपूर्ण शुद्ध आत्मज्योति, उसको तिरोभूत कर सके ऐसी तेरी एक समय की पर्याय की ताकत है. ये पर्याय आत्मा के पूरे क्षेत्र से उत्पन्न होती है. वही आत्मा के पूर्ण क्षेत्र में आत्म ज्योति छिपी हुई है. दोनों का क्षेत्र समान है. आत्म ज्योति त्रिकाल, वर्तमान वर्ता तत्व एक समय का. आत्म ज्योति में अनादि से अनंत परिणाम उत्पन्न करने का शक्ति रूप सामर्थ्य, लेकिन वर्तमान एक समय की पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आ सकती. पर्याय अनित्य, क्षणिक. आत्म स्वभाव त्रिकाल, नित्य. पर्याय में विविधता, आत्म ज्योति एक रूप. आत्म ज्योति का लक्षण भिन्न, पर्याय का लक्षण भिन्न. आत्म ज्योति का लक्षण भिन्न, नौ तत्व का लक्षण भिन्न. परिपूर्ण सामर्थ्य वाली, परिपूर्ण शुद्ध ऐसी आत्म ज्योति, वो तिरोभूत कहाँ? तेरी ही पर्याय में. क्यों? तेरी विकारी पर्याय में इतनी ताकत है उसको तिरोभूत कर सके. वो विकारी पर्याय जो उत्पन्न हुई उसका कर्ता तू. तेरी ही पर्याय ने तेरे शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत कर दिया. तेरी पर्याय में विभाव उत्पन्न हुआ, उसकी जिम्मेदारी तेरा पर. तेरी गलती है, तो उसका कर्ता हुआ है, तो उसका भोगता हुआ है. एक समय की पर्याय में तूने हूँपना किया है. करना चाहिए त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में हूँपना. अब देखो आगे.
જેમ વર્ણોના સમૂહમાં છુપાયેલ એકાકાર સુવર્ણને બહાર કાઢે તેમ जो सुवर्णकार है वो सोना को अग्नि में डालता है, तब भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखने में आता है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को गौण करके उसमें से एक रूप शुद्ध परिपूर्ण शुद्ध सोना निकालना है बाहर। उसी प्रकार तेरे परिणाम में विविधता है। तेरे प्रत्येक परिणाम में विविधता है। प्रत्येक परिणाम की इंटेंसिटी भी भिन्न भिन्न है। ऐसे परिणाम में से एकाकार ज्ञायक, एक रूप ज्ञायक, परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक, त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक, निरपेक्ष ज्ञायक, ऐसा जो ज्ञायक है, ऐसा जो ज्ञायक का स्वरूप है, उसको विभाव की पर्याय से भिन्न भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करके ज्ञायक में हूँपना स्थापित करके ज्ञायक को जानकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान प्रकट कराना है। तो जो तेरे परिणाम में छुपा हुआ ज्ञायक है, उसमें से छुपा हुआ ज्ञायक को बाहर कौन निकालेगा? तो कि छुपा हुआ ज्ञायक को शुद्ध नहीं बाहर निकालेगा। क्यों? तो कि शुद्ध नहीं, वर्तमान प्रकट 9 प्रकार के तत्व है, उसको गौण करके उसको यही करके ज्ञायक को मुख्य करके, ज्ञायक को ग्रहण करके, ज्ञायक में हूँपना स्थापित करके, ज्ञायक स्वभाव को जानकर उसका श्रद्धा और ज्ञान करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट कर लेगा। ये कार्य शुद्ध नहीं का है। शुद्ध नहीं में इतनी ताकत है। जो नई आत्मा के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कराता है वो शुद्ध नहीं कहलाती है। तो क्या कहा कि शुद्ध नहीं से બહાર કાઢી પ્રગટ કરવામાં આવે છે। शुद्ध नहीं से आत्मज्योति बाहर निकाल कर विनायक स्वभाव को प्रकट कराने में आता है। इसलिए अब हे भव्य जीवो, हे पात्र जीवो, हे निकट भवी जीवो, हे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाले जीवो, हमेशा आने अन्य द्रव्योथी तथा तेमनाथी थता नैमित्तिक भावोथी भिन्न एकरूप देखो।
क्या कहा? हे पात्र जीव, हमेश के लिए, प्रत्येक समय के लिए उसको यानी ज्ञायक को, ज्ञायक अन्य द्रव्य से भिन्न और कर्म के उदय उससे यानी कर्म के उदय से जो नैमित्तिक भाव उत्पन्न होते हैं, कर्म का उदय निमित्त और जीव की पर्याय में विकार हुआ नैमित्तिक भाव, ऐसे नैमित्तिक भाव, विकारी भाव, मोराग्नि स्वरूप भाव, उससे भिन्न तो ज्ञायक है। उससे भिन्न एक रूप को देखो। एक रूप कौन है? ये सब ज्ञायक का विशेषण है। एक रूप ज्ञायक, भेद रहित ज्ञायक, गुण भेद रहित ज्ञायक, पर्याय के भेद रहित ज्ञायक, धर्म के भेद रहित ज्ञायक, शक्ति के भेद रहित ज्ञायक, ऐसा एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप। उसको देखो, उस पर दृष्टि करो, उसको जानो। देखो यानी दृष्टि करो, देखो यानी उसको जानो। ये ज्योति यानी ये आत्म ज्योति ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव, पदे पदे, पदे पदे का अर्थ है पर्याय पर्याय, एक रूप, पर्याय में एक रूप, चित चमत्कार मात्र, चैतन्य चमत्कार मात्र, उद्योतमान है, विद्यमान है, प्रकट रूप है। आत्मा की प्रत्येक पर्याय में ज्ञायक एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, विद्यमान 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 विद्यमान। द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, उसमें से पर्याय को गौण करके ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रख के ज्ञायक स्वभाव के स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट कर लो। विनायक की विद्यमानता का स्वीकार कर लो। विनायक अस्थि रूप है, उसका अस्तित्व है, उसकी हयाती है, उसमें हूँपना स्थापित कर लो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। लो समय हुआ है, भावार्थ कल चलेगा। कौन जय बुलाएगा? हाँ,
जय हो, 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 जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।